Welcome to this new series. The series is named Karishma Ka Karishma. So we have CA Karishma with us. Hello. And we are hi. So basically we are going to focus on mindset miracles. What miracles you can create with changes in your mindset and how it can affect your life in general, irrespective of anything that you are, and for any competitive exams or anything that you are doing in life, you are going through in life, how mindset can bring about miracles and how lacking it can avoid you from getting those miracles. So let's start. Okay. So now since these September CA Inter and Foundation exams are coming, so she is CA, so she will help us to know how to tackle with the mental pressure. Like sometimes students don't get one answer. They stuck up in one answer and then all is wasted. Or at times one difficult paper and then next day's preparation is flopped. Correct. And when result comes, they find out that the paper that they were worried for, they actually cleared in that paper, or they got exemption but they flunked in the next paper. And the group goes. This is so common in our CA course. Yes. Like better than me, every pursuing CA, every student can relate to this question because they are going through this. Even I have went through this. Right. But I have went through this kind of situation in very early stage of my life. Okay. Like when I was in 6th or 5th standard something. Okay. So what happened, I am not going to give any motivation or anything, I'm just sharing my experience. So what happened, I studied my maths paper throughout, and in the morning I did all the exercises that were like I thought revision kind of thing. I was full-fledged prepared, like I was a scholar person, so I went with full confidence. Now I'm going to smash my exam and everything. Perfect. And then I went to the paper. First fill in the blanks came, I did it. Second, match the following came. So it was just one, like out of 5 in match the following there were 5 things. 5 subjects, only one subject. Yes, only one that I studied in the morning. Okay. That morning itself. Yes, that morning itself, and I couldn't remember it. And at that point of time, all the pressure. I did it in the morning. How can I forget it? मम्मी क्या बोलेगी? अब मैं मतलब all negative अब मेरा competitor मुझसे आगे चला जाएगा, या फिर अभी ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने ये अभी ही किया. And I started crying. I started crying. My teacher came, my friends came. Everyone living their paper, they came to me and said, आगे का करना, तू आगे का कर, इसको छोड़, जितना आता उतना कर. तो ठीक है, सबका सुना, आगे का करते हैं, कर रही हूँ, फिर से पीछे जा रही हूँ, अपने आप को बोल रही हूँ, कैसे भूल सकती है, क्या कर रहा है, ये क्यों किया तूने, अब मम्मी क्या बोलेगी, ये क्या होगा. या फिर basically you are focusing on everything except अभी that मैंने question or next question. Yes, everything, leaving everything, I was just focusing कि मेरा ईगो आ रहा है कि मैंने ये सुबह किया, मुझे याद क्यों नहीं है, मैं एक स्कॉलर हूँ, मुझे याद होना ही चाहिए, मुझे याद क्यों नहीं है. And then I did all the paper, but I went back and I was trying to solve. I wasted my time, I wasted my energy, I wasted the 99% that I studied thoroughly and could have attempted, could have done very properly without anything. It was just one question, 1 mark question. And that day I flunked. I came back home. I told my mom, मैंने नहीं किया. मम्मी बोली, एक क्वेश्चन किया नहीं, बाकी तो सब आता है ना, सॉल्व करके दिखा मुझे. मैंने सब सॉल्व किया. एंड देन आई वाज लाइक, और मैं रोए जा रही हूँ कि अब मुझे वो टेंशन है कि मुझे 1 मार्क का नहीं आया, अब मुझे ये क्वेश्चन आया, अरे मैंने तो सब रॉन्ग कर दिया, मैंने सब रॉन्ग कर दिया. और मैंने पूरा 1 मार्क की वजह से सिर्फ मुझे अपने माइंड को समझाना था कि
ये एक क्वेश्चन है. in that moment, in that pressure, मुझे अपना ईगो साइड में रख के ऐसे खेलना था कि चल एक नहीं हो रहा है, 99 एक पे हावी हो जाएगा. 99 अच्छी चीजें एक पे हावी हो सकती है. That could have changed my situation, but I am very glad that thing happened to me. I failed that exam. I was like, it was the best thing that happened to me in a very early part of my life. And after that, when second day came, I was not thinking about that one question. I was thinking about the 99 things that I missed. Yes. 99% marks that I missed because of only one mindset. Like, I could have thought positively. No, this same thing happens in life also. Like, there could be, like, we make it entire life at that point of time. Not just, like, we don't remember that it is just part of this life or just part of this paper or part of this exam. We make it our entire world, our life, everything. Like, everything is resting on only that one question. And in doing that, what we are not just getting stuck on that. We are not just ready to move. Yeah, we are not ready to let go at that point. Not able to accept it, and like as you said, ego comes in. Yeah, because I was a scholar. Like हाँ मतलब मैं कैसे भूल गई, मेरा ऐसे क्यों हो गया? अरे हो गया भाई. That doesn't define your knowledge, skills or anything. Like right now you are CA, so you cannot just, if you compare it today, it is nothing. So one failure or just one thing which you are not able to get at that point of time, it's better to leave it in that point of time and just go ahead in the next moment with the next things that will help you to move ahead more smoothly. And after, like, if you just leave it for some time, ऐसे हो सकता है कि आप जब 99% सॉल्व करो, ये कॉन्फिडेंस है कि मैं स्कॉलर हूँ. अगर मैंने ये सोचा होता कि मैं स्कॉलर हूँ, मैं बाकी का अच्छे से सॉल्व करूँगी, तो मेरे को वो 1% भी याद आ जाता. और अगर नहीं भी आता तो भी ठीक था. Yes. So one more thing which I can say is, she was not listening to people around her, but see how her own words influenced her performance. Correct. So irrespective of what others are saying, what you tell to yourself matters. At that point. Yes, at that point, it matters much more. Correct. Because you can hear 1,000 good things, you can read 1,000 good things, but until and unless you tell it to yourself, that will not work for you. And एक ठोकर जरूरी है लाइफ में. I'll say that. teaches मुझे you बहुत a जल्दी lot. मिल गई and I'm very grateful. So Again, like, because you realized it, so it is helping you moving yes. ahead. Right. But if you don't realize, then that is not going to help you again. So Yes. self-realization also matters a lot, as much as the words that you keep telling yourself repeatedly. True. So in that moment, if you would have told yourself, then maybe you would have focused on the remaining 99%. Correct. But it made me very strategical No, throughout my that's academic good. journey. So that one paper was okay. You saved the rest of 99 Correct. papers. Yeah, so that is what we need to learn from our life experiences, from whatever we go through in our day-to-day life. I'll also share one more thing. Like in my intermediate, there were two groups. There are two groups, yes, right? There are two groups. Correct. So we all knew, we are very young. So I was very happy joining a very big class, and I was just with the flow, enjoying my first group teaching. I was not doing my homeworks. I was not studying regularly. And then I realized during the second group preparation, oh भाई साहब अभी तो मेरा आ गया है एग्जाम. तो उस टाइम पे क्या होता, मैं ऐसे बोलती मैं नेक्स्ट पेपर दूंगी, नेक्स्ट ग्रुप दूंगी, नेक्स्ट अटेम्प्ट दूंगी. लेकिन हमने ऐसा नहीं किया. हमने क्या किया, जिस टाइम अक्कल आए ना उस टाइम शुरू करने का. तो सेकेंड ग्रुप पे अक्कल आ गए. तो सेकेंड ग्रुप पे मैंने इतना स्ट्रॉन्ग किया, अपना थ्योरी स्ट्रॉन्ग किया, अपना ये स्ट्रॉन्ग किया, सब स्ट्रॉन्ग किया सेकेंड ग्रुप. फर्स्ट ग्रुप का DT 40 मार्क्स, बाकी सब एग्रीगेट 2 मार्क्स से कम हो रहा था. तो मेरा the decision of giving both the groups and making my second group so strong that if my aggregate doesn't
हाँ वर्कआउट happen, तो वो so it will get a set yes, off. yes, And yes. luckily I got that 2 mark set off from my group 2. Okay. सिर्फ ये सोच के कि मेरे को अपना group 2 तो तगड़ा करना है. Yes, Group that 1 is perfect हो गया. strategy. तो तुम जब जो तुम्हारा strong point है ना उसको इतना Yes. hold करो, it will definitely help you to मतलब वो जो overcome your दूसरा weakness. weakness है उसको अच्छे से कवर करेगा. कवर कर लेगा. And it's applicable everywhere. right. हाँ मतलब सी यहाँ पे वी कैन ओनली प्ले ऑन आवर स्ट्रेंथ्स. हम ICI का वीकनेस उतना जज नहीं कर सकते, तो इट्स बेटर टू प्ले ऑन आवर स्ट्रेंथ. True. I hope I answered the. yes, that's fine. And like इसका ना एक अगर हम न्यूरोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो what happens in our mind is when you are getting emotional, कोई भी इमोशंस हो सकते हैं, once your emotional brain starts functioning तो वो ऑटोमेटिकली आपका लॉजिकल ब्रेन शट डाउन कर देता है. लाइक यू मेंशन कि सब लोग बोल रहे हैं कि यू कैन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन बट यू वर क्राइंग. So that was crying is the best emotional outflow. So when you are that much emotional, तो उस टाइम पे ना it is very necessary कि somehow you try to shut down your emotional brain, because अगर 1 minute के लिए भी आपने shut down कर लिया ना emotional brain, then your own logical mind will start working and it will give you the solutions. तो जो मतलब आसपास वाले बोल रहे हैं that is okay, but until and unless it comes from you within, you won't be able to work on that. And हमारे हर emotions true नहीं होते. Right. हमारे हर And emotions true नहीं emotions होते. momentary भी होते Yeah, हैं. it's very momentary, very subjective. Yes. और उनको हम मतलब जितना पकड़ते हैं ना, like for example suppose I am feeling happy right now, if I hold on to that तो वो मेरा feeling बन जाता है long time के लिए. And that applies to every emotions. तो लाइक यू कैन मतलब ये खुद भी हम एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं. अगर कभी अच्छा नहीं लग रहा है ना, जस्ट ट्राई टू लिसन टू सम हाई वाइब और सम हैप्पी सॉन्ग 2-3 टाइम्स ऑन लूप. भले मन नहीं कर रहा है, जस्ट ट्राई इट. 5 मिनट के बाद ना वो एनर्जी लाइक ऑटोमेटिकली वो ट्रांसफर होती है. True. और यही चीज़ आप नेगेटिवली भी अगर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो तो यू कैन डू दैट. कितना भी मस्त एकदम अच्छे मूड में ना 1-2 सैड सॉन्ग सुन ले. हाँ, अभी वो बरसात सुन लो. मतलब इतना 2 मिनट में ना सैडनेस आ जाएगी. लाइक यू विल योरसेल्फ नॉट बी एबल टू फिगर आउट कि ये आई कहाँ से. मैं तो इतने अच्छे मूड में थी, इतना सब हमारा अच्छा हो रहा है. ब्रेकअप भी नहीं हुआ होगा ना केविना दीदी वो सॉन्ग सुन के, अरे वो- तो भी हमको ऐसा लगे वो किसी ने हमारे साथ बहुत बुरा किया. कोई हमें क्योंकि छोड़ के वो चला गया. एनर्जी ना ऑटोमेटिकली होता है. मतलब एक होता है हमारे माइंड में होते हैं मिरर न्यूरॉन्स बोलते हैं जिसको. Okay. तो कैसा होता है कि लाइक अभी मैं तुम्हारे साथ बैठी हूँ और अभी यहाँ पे बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है, तो ऑटोमेटिकली मेरे ब्रेन के जो मिरर न्यूरॉन्स है ना वो उस एनर्जी को रिसीव कर रहे हैं, वो उस मूड को रिसीव कर रहे हैं. तो आई फील हैप्पी. मतलब ट्राई करना कभी कोई ना बहुत अच्छे से मूड में हो ना, कोई सैड जगह पे जाना है या कहाँ पे कोई मतलब ऐसे बातें करे ना, वहाँ पे जाके 2 मिनट रुकना. like automatically you will feel that boredom and that things in you. मैं तो कभी कभी आंटियों के गॉसिप सुन लेती हूँ और मुझे लगता है वाह मेरा दिन बन गया. मतलब आई थिंक मोस्ट ऑफ पीपल टेम्पल जाते होंगे या कोई भी रिलीजियस प्लेस में जाते होंगे, तो वाई इट इज़ एडवाइज्ड कि आप टेम्पल में जाओ, एटलीस्ट दिन में एक बार जाओ, स्पेंड 2 minutes देयर, आरती करो. द रीज़न इज दिस सिंपल ओनली कि जो हमारे मिरर न्यूरॉन्स होते हैं ना, दे गेट एक्टिवेटेड, तो वो नेचुरली उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं. ओके. तो वही एक साइंटिफिक रीजन है, बट उसको मतलब हम धर्म के साथ ज्वाइन करते तो पीपल विल फॉलो इट. एंड वो ऐसे भी होता है ना दैट जब हमारी एनर्जी लो है तो हमें हमेशा एक हाई एनर्जी के पास जाना चाहिए ताकि Yes. हम मतलब जिधर जो हमारा ऊपर साइड है हम अगर वो देखें तो फिर हम ऊपर पहुंच पाएंगे. अगर हम हमसे भी नीचे एनर्जी लाएंगे तो उनको हम नेगेटिव एनर्जी अगर जब भी होता है ना, तो इट इज़ वेरी इजी दैट यू विल इजीली गेट ड्रॉन टू मोर नेगेटिव. ट्रू क्योंकि मतलब जो हमारा माइंड बना है ना, दैट इज बेसिकली मेड फॉर सर्वाइवल. तो मतलब इन जनरल भी आप कोई भी अपना पास्ट लाइफ का कोई एक्सपीरियंस है ना, जस्ट याद करके देखना. अगर कुछ अच्छा भी हो रहा है ना, माइंड में से एक आवाज़ आती है कि अगर ये वर्कआउट नहीं किया तो, लाइक यू आर वेल प्रिपेयर्ड, सब पता है, सब एनालिसिस लॉजिकली हमने सब फाइंड आउट कर दिया, स्टिल योर माइंड विल टॉक. एक बार तो वो ख्याल आएगा ही कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या करेंगे. क्योंकि
जो हमारा माइंड है ना वो अभी भी उसी प्रिमिटिव एज में है जहाँ पे बेसिकली इट वाज फॉर सर्वाइवल। वही रीज़न था कि हम ट्राइब्स में रहते थे बिकॉज जंगल में बहुत सारे एनिमल्स एंड बहुत नेचुरल चीज़ें भी थी विच कुड बी हार्मफुल टू अस। तो हमारा माइंड हमेशा इसीलिए ना नेगेटिव चीज़ों को बहुत पहले एंड इजीली बिकॉज दैट इज़ द नेचुरल लैंग्वेज ऑफ आवर माइंड और वो बना ही हमारे सर्वाइवल के लिए है। अगर ऐसे नहीं बना होता तो अगर जैसे सपोज कि कोई पेड़ पे चढ़ा है उसको मन कर रहा है कि मैं कूद जाऊँ, उसको एक थॉट आए कि मैं कूद जाऊँ, तो अगर माइंड ऐसे नहीं बना होता तो वो कूद जाता। तो माइंड इसीलिए ऐसा बना है तो हमें कॉन्शियसली इस चीज़ पे वर्क करना पड़ता है कि कुछ भी हो रहा है और हम जिस भी चीज़ को या जिस भी थॉट को हम एनर्जी देंगे वो वहीं पे आगे जाएगा फिर। तो वही है मतलब कि हमारे लाइफ में 1% रॉन्ग होता है, बहुत सीवियर इंटेंस रॉन्ग हो सकता है, हाँ। लेकिन आई बेट you will have 99% of things that is working for you, God is working for you, and you just need to observe it because we always focus on that Yes. 1% negative thing, Right. which like I flunked my maths paper same way. So let's focus on 99 positive. If there are not 99 positive, we'll create 99 Actually, positive. मतलब पॉजिटिव ही सोचना है ना तो देर आर मेनी थिंग्स हम नहीं सोच पाते। जैसे अभी वी आर सिटिंग राइट नाउ, वी हैव एवरीथिंग विद अस जो बहुत लोगों के पास नहीं है। वी हैव दैट प्रिविलेज। हमारे पास अपना वर्किंग बॉडी है, बहुत से लोगों के पास ये भी नहीं है। हमें खाना मिल रहा है, हमारे पास घर है, मतलब अगर हम देखने जाए तो बहुत चीज़ें हैं जिसके लिए हम ब्लेस्ड खुद को फील करवा सकते हैं। ट्रू, वेरी ट्रू। हमारे पास पेरेंट्स है, लाइक मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड आई थिंक खुश होने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। एक अच्छा नहीं खाना, चाहिए। एक अच्छे कपड़े, एक सेल्फी मतलब आजकल के जनरेशन के लिए खुश होने के लिए इतना नहीं चाहिए। एंड अगर तुम जेन्युइनली ग्रेटफुल हो ना, तुम हर चीज़ में ढूंढ सकते हो। तुम अपना 99% right. कैसे भी ढूंढ सकते हो। मैं अभी बैठ के बता सकती हूँ मेरा 99% क्या है। मैं आपसे Yes. बात कर रही हूँ, शायद मुझे कोई सुन रहा है, Yes, मैं खुद को it's a सुनूंगी बाद में privilege. जाके। Yes, जब yes. मैं शायद अभी मैं ये पॉइंट पे हूँ कि मैं बोल पा रही हूँ, लेकिन हाँ. मैं शायद वो व्यूअर हूँ, Yes. बन सकती हूँ आगे जाके कि मेरी लाइफ में कुछ हो, कुछ Right, बहुत बुरा right. या कुछ अच्छा भी हो सकता है, तो मैं आके मतलब देखूंगी। एक्चुअली अच्छा बुरा इज इटसेल्फ अ पर्सपेक्टिव। करेक्ट, ये वही बात हो गई कि एक को 6 दिख रहा है और एक को 9 दिख रहा है। ट्रू। मतलब जहाँ पे हम फोकस करते हैं ना, बिकॉज ऐसे बोला जाता है कि इवन जो एक बंद पड़ी हुई घड़ी होती है ना, वो भी दिन में 2 बार तो सही टाइम दिखाती है। तो अगर हम एक नॉन लिविंग थिंग के लिए ऐसे होता है तो मतलब ह्यूमन बींग्स उनकी बहुत कैपेसिटी और बहुत एबिलिटीज है। तो वही मतलब अभी जैसे आपने बताया कि हम लोग बहुत सारी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल रह सकते हैं एंड वो 99% ला सकते हैं अपने और life में। जैसे अब सी दैट डे शी कुड नॉट क्लियर, ठीक है, उस दिन रोया जो भी हुआ, बट अब उस एक चीज ने पूरी लाइफ चेंज कर दी। वही आई एम सो ग्रेटफुल एंड सो हैप्पी दैट हैपेंड टू मी। हाँ, वही मतलब वही होता है कि पर्सपेक्टिव है कि एक हम बैठ के सोच सकते कि मैं वो नहीं कर पाई और दूसरा हम ये सोच सकते कि उस एक ना की वजह से आज मैं कितना हाँ कर पाई। और आपको पता है क्या वैना दीदी, मेरा ना जो भी फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे खोड़ के या हम लोग एग्जाम में देखो हम कुछ लिखते हैं, हम बचपन में वो मम्मी को बोलते थे स्टार्टिंग का बता दे फिर हम कर देंगे। तो कभी कभी एग्जाम में जाके हम स्टार्ट ही रॉन्ग कर देते हैं। yes. तो हम वो करते हैं, कट right. करते हैं, तो हमें ऐसे लगता है ये, लेकिन मेरा जब भी मैंने कट किया है फर्स्ट क्वेश्चन, हाँ, वो सही हमेशा राइट निकला है। गया है बाद ये में। मेरे साथ भी होता है। तो आई थिंक ये हमारे साथ हो रहा है तो बहुत लोगों के हाँ साथ होता होगा डेफिनेटली। मतलब मेरा आज तक का एक्सपीरियंस रहा है कि जो क्वेश्चन मैंने लिखा होगा फर्स्ट टाइम में मैंने लिखा होगा, फिर पता नहीं रीचेकिंग के टाइम मेरे माइंड में क्या ही थॉट आता है ना, तो मैं उसको कट करके फिर से लिखती हूँ। फिर घर पे जाके मेरा मन करता है कि देखूँ कि मतलब मैंने जो सही किया है बाद में वो सही है ना, और वो हमेशा गलत होता है। लाइक एवरी टाइम मैंने ये ऑब्जर्व करा है। तो बहुत बार होता है कि जो हमारे ब्रेन का फर्स्ट इंस्टिंक्ट होता है ना, दैट इज करेक्ट वन। फर्स्ट इंस्टिंक्ट्स आर ऑलवेज हाँ, राइट। वो राइट ही मतलब होता है।
फर्स्ट इंस्टिंक्ट ऑलवेज राइट होता है. एंड ऑल्सो मतलब हम कभी ऐसे सोचते हैं ना कि हमारी स्टार्ट गलत हो गई है तो आगे का सब गलत, ऐसे नहीं वो भी होता. बहुत गलत चीज है. वो तो बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि अभी जैसे मैंने एग्जांपल्स दिए, स्टार्ट हमेशा प्रॉमिस्ड नहीं होती. Right, इट्स right. सेड कि स्टार्ट गुड तो वो हाफ नहीं, फिनिश और हो मतलब जाता है वो. दैट इज ऑल्सो ट्रू, बट ये भी ट्रू है कि कभी कभी अगर वो करेक्ट नहीं हुआ तो मतलब ऐसा वो- नहीं है कि आगे कुछ अच्छा नहीं Yes. होगा. डेफिनेटली कोई कोई का ऐसे रहता है कि नहीं, मतलब इवेंचुअली हमें जहाँ पे जाना है ना तो हम वहाँ पे पहुँच ही जाते हैं. हाँ करेक्ट. तो डजेंट मैटर हम कहाँ से स्टार्ट करें. मतलब बहुत सारे एग्जांपल्स हैं ना जो रेक्स टू रीचेस वाले हैं. मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ों में हम एग्जांपल्स ढूंढ सकते हैं. तो सबका फर्स्ट यू शुड जस्ट मेक इट हैपन फर्स्ट. लाइक जैसे इस पे ना अभी रिसेंटली मैंने एक कोट पढ़ा था कि अगर कोई म्यूजिशियन है ना, अगर आप गाना स्टार्ट कर रहे हो या आप कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट कर रहे हो तो आप पे अक्सर वही लोग हंसेंगे जिन्होंने कभी वो ट्राई नहीं किया है. जो उस फील्ड का एक्सपर्ट है ना, दैट पर्सन विल अप्रिशिएट यू. राइट. आपने एड शेरन को देखा, वो कपिल शर्मा शो में आया था. वो Okay. बोलता है मैं अपने पुराने गाने सुन ही नहीं सकता. हाँ. मतलब मैं इतना गंदा गाता था. अगर मैं कोई और होता तो मैं अपने आप को पक्का जज करता. Right. लेकिन अभी अगर कोई मेरे सामने एमेच्योर आ रहा है तो आई वोंट जज, बिकॉज Yes. विथ प्रैक्टिस यू करेक्ट. मेक इट मतलब गुड. आप कुछ भी सीख सकते हो. एंड ये मेरा भी रिसेंट अभी का एक्सपीरियंस है. सो आई वाज ऑन सम आउटिंग. वहाँ पे कराओके था तो आई जस्ट लाइक कि मेरे को स्टेज मिलता है ना तो आई ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी. तो मैंने जाके गाया एंड आई डोंट नो कैसे, तो लाइक इट वाज नॉट सपोज टू बी रिकॉर्डेड बट वो रिकॉर्ड हुआ था. एंड रिकॉर्ड हुआ था तो स्टेटस पे डालना तो पड़ता है. सो मैंने उसको स्टेटस पे डाला था एंड आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग. तो जो मेरी बेटी को सिखाते थे गाना, सो दैट टीचर शी कमेंटेड कि अगर आपने इसको नेचुरल वॉइस में गाया होता विदाउट कराओके तो ये और बेटर लगता. सो दैट फेल्ट वेरी गुड कि शी इज टीचर, लाइक शी इज एक्चुअली हैविंग दैट नॉलेज, दो स्किल्स, और वो मेरे को जज नहीं कर रहे हैं क्योंकि मुझे खुद को तो हंसी आ रही थी. तो मतलब वही होता है, बिकॉज मुझे नॉलेज नहीं है तो मैंने खुद को भी जज ही किया. वैसे ही हम दूसरों को भी जज ही करते हैं. तो हमेशा अगर हमें कोई भी कमेंट, क्रिटिसिज्म कुछ भी मिलता है तो ये मेरा पर्सनल एक बिलीफ है कि हमें तभी उसको थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए जब आइदर वो उस फील्ड के किसी एक्सपर्ट पर्सन से आ रहा है, बिकॉज देन देर इज समथिंग फॉर यू टू लर्न. अदरवाइज मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स, एंड इवन ये आप खुद भी करते होंगे कि अगर मैंने किसी को मेरे से अच्छा देखा तो मे भी फर्स्ट थॉट तो आएगा कि हाँ मैं भी कर सकती हूँ ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है. बट द मोमेंट आई एक्चुअली ट्राई टू डू इट तो मेरे को समझ में आता है कि नहीं ये बड़ी बात सब, है. हाँ, मतलब सबके लिए दिस इज नॉट पॉसिबल. एंड सबका एक डिफरेंट टैलेंट भी होता है तो बहुत सारे फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं. वेरी ट्रू. तो वही अभी इस पे से दिस विल गो ऑन एंड ऑन, बट एक लास्ट, जैसे वो देसी ब्लिंग में इट्स अबाउट द रिलेशंस. लाइक एक देसी ब्लिंग में करण कुंद्रा है. तो करण कुंद्रा को उसके आसपास वाले तेजस्विन के बारे में सब बुरा बोल रहे थे. ओके. कि वो ही वाज अबाउट टू प्रपोज हर, बट देयर वाज सो मच ऑफ नेगेटिविटी. यस. लेकिन करण कुंद्रा नोज तेजस्विनी वेरी वेल. राइट. और वो दुबई शिफ्ट हुए तो देयर वाज चेंज इन सर्कमस्टेंसेस एंड एवरीथिंग, तो वो डिफरेंट बिहेव कर रही होगी एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट लास्ट में उसने एक चीज़ कोट की, मन में ही बोला उसने, जो कि बताया था देसी ब्लिंग में. तो वो बोलता है कि मैं उनसे तो राय नहीं लेना चाहता हूँ जिन्होंने खुद में कुछ उखाड़ा नहीं है. मैंने जो देखा है, मेरा जो जजमेंट है वो मैं आई गो विथ दैट. सो यू शुड ऑलवेज लिसन टू योरसेल्फ फर्स्ट एंड देन यू कैन लिसन टू एवरीवन, बट डिसीजन तुम्हारा खुद का ही होना चाहिए. ये इससे ना मुझे वो एलिफेंट वाला स्टोरी याद आ रहा है जो बचपन में शायद हम सब ने सुना होगा. सो देयर वर 6 ब्लाइंड पीपल एंड देयर वाज वन बिग एलिफेंट. तो क्या होता है कि हर एक जो पर्सन होता है ना, एक को उसकी पूछ, लाइक दे आर ऑल ब्लाइंड सो दे कैन जस्ट टच एंड ऑब्जर्व कि क्या है.
तो जिसको जो पूंछ को टच करता है वो बोलता है कि हाँ, वो उसको डिस्क्राइब करता है कि एलिफेंट ऐसा दिखता है. एक ने ट्रंक को लिया, एक ने एक पैर को लिया, दूसरे ने दूसरे पैर को लिया. सो इट इज़ अबाउट व्हाट एक्सपोजर यू आर हैविंग. वो साइड आपको उस पर्सन की दिखेंगी एंड दैट डजंट मेक द एंटायर पर्सन. करेक्ट. और मतलब आप जो भी आपका थोड़ा सा इंटरेक्शन होगा उसमें लाइक इवन इफ अगर आप लाइफ टाइम भी किसी के साथ रहोगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू नो द पर्सन एंटायरली. एंड यू ऑल्सो कीप इवॉल्विंग विथ टाइम, सेम वे अदर पर्सन कीप्स इवॉल्विंग. और बहुत सारे वर्जन्स होते हैं. राइट. और वही चीज़ मतलब लाइफ में भी होती है. हमें बिग पिक्चर नहीं पता है, हमें सिर्फ इतना जूम आउट दिखता है. हम उसमें से कंक्लूजन्स निकालते हैं. तो देयर इज नो पॉइंट इन जजिंग. लेट ऑब्जर्व एंड जस्ट गो अहेड विद द जर्नी. ट्रू, वेरी ट्रू. और बस वही चीज़ हम बोल रहे थे कि 1% से अगर हम उस 1% को रख के आगे जाते अपनी जर्नी में, तो हम 99 वाला अच्छे से कवर कर पाते हैं. हाँ. तो बी इट योर लाइफ और योर एग्जाम्स, रिमेंबर कि उस 1% पे स्टक नहीं करना है. क्योंकि जितना पीछे मुड़ के देखोगे ना, लाइफ होगी या आपका रास्ता होगा, पीछे मुड़ के देखने से पीछे देखोगे, आगे तो नहीं जा पाओगे. एंड सेम थिंग अप्लाइज इक्वल इन योर लाइफ ऑल्सो. तो जहाँ पे स्टक हो, अगर मैं बोलूँगी कि नहीं करिश्मा मैं तो स्टक हूँ, मैं कैसे आगे जाऊँ, मैं कैसे आगे जाऊँ, बट मैं तो देख ही पीछे रही हूँ, आगे तो कैसे जा पाऊँगी. तो मतलब वही होते हैं. उस टाइम हम ना बहुत से लोगों को भी कंसल्ट करते हैं बहुत बार कि मेरे को गाइड करो, मैं क्या करूँ. बट फॉर अ मोमेंट अगर आप उस चीज़ को उस मोमेंट पे छोड़ के अगर आगे जाओगे, तो शायद बहुत कुछ आप फिगर आउट कर लोगे एंड आपको हेल्प भी ऑटोमेटिक मिलने वाली है. द थिंग इज यू नीड टू टेक दैट फर्स्ट स्टेप. ओके, सो हम लोग ने बहुत बात की आज. हाँ, वो तो एंड फिर करेंगे. फिर से करेंगे. हाँ, जब तक मन कर रहा है तब तक करेंगे. एंड विल बी कंटिन्यूइंग इट. yes, definitely. So see you all again in the next episode. तब तक के लिए आप भी बातें करते रहिए, खुश रहिए, सबको खुश रहिए. Thank you everyone. Thank you.